Hello friends, again I welcome you all on your PDA education. So today again we are going to give you some updates so that are regarding some jobs. Okay, so students, as you know that your feedback is important for us. So please provide us the feedback in the comment section of these videos so we can improve this series further. Okay, and other than this आप अपने friends के साथ इन videos को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और like करें. And please suggest us the changes whatever are required in these series of videos. So today's job update is regarding non-teaching post in NIT Andhra Pradesh. Okay, so let's see this advertisement, and this advertisement link I will also provide in the description of this video also. Okay, so let's check this. This is NIT Andhra Pradesh. So this is the address. Okay, and this is the advertisement number dated 9th June, and there are recruitment of non-teaching staff post at this NIT. Okay, so you can see what are the various posts. Post is of one post registrar, librarian one post, sports officer one post, assistant one, junior engineer total is two, technician 4 post, senior technician 1 post, and junior assistant, that is again 4 post, and so there are total 15 posts. Okay, for some post experience is required, and for some post experience is not required. So see here, uh, so when you will go to this section, that is general instruction section, so you have to apply online, okay, for all the posts so that are being published in this advertisement, and you have to go onto this link, that is www.nitandhra.ac.in, and you can apply online. Okay, and you can read the instruction very carefully. Fees kitna hai iska? So that is ₹1000 per application for general and OBC candidates. Okay, and for SC ST PWD the fees is ₹500. ठीक है, तो हर एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली फॉर्म फिल करना पड़ेगा. ओके, अगर 2 फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो दोनों फॉर्म सेपरेटली फिल करना है, 2 बार फीस लगेगी इसमें. ओके, एंड डिमांड ड्राफ्ट DD आर नॉट एक्सेप्टेड. पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी. एंड कब से स्टार्ट हो गया है ये, 11 जून से स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, और लास्ट डेट कब तक है, सो दैट इज 10th जुलाई. कितना टाइम है, दैट इज 5 PM. ओके, एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ PDF प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स 19th जुलाई तक आपको सेंड भी करने हैं. ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसका प्रिंट आउट, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी अलोंग विद ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ इस डेट तक सेंड करना है. कौन से एड्रेस पर सेंड करना है, ठीक है, तो इन सभी को आपने क्या करना है, एक एनवलप में एनवलप में सारे डॉक्यूमेंट्स को रखना है विद एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, और उसके ऊपर क्या लिखना है एनवलप पर, एप्लीकेशन फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट ऑफ दिस. सो पोस्ट का नेम आ जाएगा यहाँ पर एट NIT आंध्र प्रदेश, और एड्रेस ये आ जाएगा, द डायरेक्टर NIT आंध्र प्रदेश दिस. ओके, दिस पिन कोड वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो कैसे भेजना है आपको, थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट. ठीक है, और कब तक भेजना है, दैट इज अप टू 19th जुलाई. ठीक है, अगर 19 जुलाई के बाद अगर पहुंचती है आपकी एप्लीकेशन तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. क्लियर? So cut-off date for determining eligibility of candidates in all aspects is the closing date for submission of online application. So that is 10th July. ठीक है, तो जो आपके पास डिग्री होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, वो कब तक होने चाहिए, लास्ट डेट. ठीक है, so that is 10th जुलाई तक वो होने चाहिए. ठीक है, तो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी के लिए जो कट ऑफ डेट है, so that is 10th जुलाई. तो अगर किन्हीं कैंडिडेट ने पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार को अगर पहले फिल कर दिया है तो उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसे दोबारा एडवर्टाइज किया गया है. इसके अलावा अगर आपको कोई और अपना डाटा अपडेट करना है तो आप दोबारा से क्या भेज सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सेंड कर सकते हैं. Candidates who wish to apply for more than one post should apply separately for each post in the prescribed manner and separate application. Okay, the user ID should be different. Clear? With requisite fees must be submitted for each post. तो user ID अलग होगा, फीस अलग से सबमिट करनी होगी with separate with different applications. So selection कैसे होगा, 2 phases में होगा, written
written exam, skill test, physical test, proficiency test based on the nature of the post. Clear है? The name of the shortlisted candidates will be displayed in the institute website. All information regarding written exam, skill test, physical test, proficiency test, schedule, venue will be provided through institute website only. The institute will not be responsible in any manner if a candidate fails to visit their website. ओके तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट लगातार आपको विजिट करनी है nitandhra.ac.in फॉर रेगुलर अपडेट्स, डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस एंड अदर अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड. ठीक है, तो नो टीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग टेस्ट और इंटरव्यू. तो रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, जो रिलैक्सेशन होती है वो सारा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा. फर्स्ट पोस्ट इज ऑफ रजिस्ट्रार, सो दिस पोस्ट इज ऑफ रजिस्ट्रार. ओके, सो दिस इज ग्रुप ए पोस्ट एंड एज लिमिट इज अप टू 56 इयर्स. मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बताया उन्होंने. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. देन educational qualification, master's degree with at least 55% marks or equivalent grade B in the UGC 7-point scale from a recognized university or institute. Experience भी चाहिए, at least 15 years experience as assistant professor. ठीक है, इतना ग्रेड पे में 7000 ग्रेड पे, तो इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस पोस्ट के लिए. ओके, एंड दिस इज रजिस्ट्रार. और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर. इसमें सेकेंड वन आई विल से, so that is for librarian in NITs. So again age limit is 56 years. Educational qualification क्या है? Master's degree in library science, information science, documentation with CGP of 6.5, okay, in 10-point scale, and experience is again required, at least 10 years experience as a deputy librarian in the library of technical university. Okay, so of course desirable है क्या है? Higher degree, PhD or equivalent. Next one I will say, that is post of student activity and sports. Students activity and sports के लिए एक post है, sports officer. Student activity and sports officer in NIT. Okay, and you can see the educational qualification and experience. Master degree in physical education or master degree in sports science or equivalent degree, okay, with at least 60% marks. Then other than this, experience in guiding group of students in creative activities. Clear है? Record of having represented the university or college at the inter-university intercollegiate competitions. ठीक है, तो आपने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को क्या किया हो? रिप्रेजेंट किया हो. तो ये है इसमें. देन अदर देन दिस, नेक्स्ट वन इज जूनियर इंजीनियर. ओके, देन स्पोर्ट्स असिस्टेंट एंड दिस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इन NITs. ग्रुप बी पोस्ट है. ठीक है, एंड एज लिमिट इज 30 इयर्स. तो अगर किसी ने बीटेक किया हुआ है सिविल इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, और या फिर डिप्लोमा है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, सो दे कैन अप्लाई. ठीक है, तो स्पोर्ट्स असिस्टेंट, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट, अगेन बैचलर डिग्री इज रिक्वायर्ड इन फिजिकल एजुकेशन. देन स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म्स, पेंटिंग. Next one is library and information assistant, first class bachelor's degree in science, arts, commerce from recognized university and bachelor's degree in library and information science. Okay, so desirable है यहाँ पर qualifications, so that is postgraduate diploma in library automation and networking. Clear है? तो जिसने BTech किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जूनियर इंजीनियर के लिए. ठीक है, सिविल इलेक्ट्रिकल में अगर किसी ने किया हुआ है BTech. Then next one is technician for the post of technician. So age limit is 27 years. Okay, तो अगर किसी ने 10+2 किया हुआ है with science from government recognized board with at least 60% marks, okay, या फिर senior secondary 10+2 from government board with at least 50% marks and ITI course of 1 year or higher duration in appropriate trade. Clear? तो अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years, तो वो भी क्या है फ्रॉम पॉलिटेक्निक और इंस्टीट्यूट, तो वो भी एलिजिबल है. ठीक है, इसके अलावा अगर आपने 10th किया हुआ है और ITI किया हुआ है 2 साल का, वो भी एलिजिबल है. ठीक है, अगर किसी ने 12th किया हुआ है, ठीक है, और 1 साल का ITI का कोर्स किया हुआ है, तो वो भी एलिजिबल है. ठीक है, अगर किसी ने साइंस स्ट्रीम से 12th कर रखी है तो वो भी एलिजिबल है. सीनियर टेक्नीशियन इन NITs, ओके, एज लिमिट इज नॉट एक्सीडिंग 33 इयर्स. ओके, सो इसकी भी जो आई विल से जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो सेम है जो मैंने अभी पीछे बताई आपको. ठीक है, तो सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसमें. ठीक है, तो 10+2 किया हुआ किसी ने साइंस स्ट्रीम में विद 60% मार्क्स, किसी ने 12th की हुई है,
ठीक है, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड ITI किया हुआ है ऑफ 1 ईयर और हायर ड्यूरेशन, तो वो भी एलिजिबल है। देन किसी ने 10th किया हुआ है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड ITF सर्टिफिकेट ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन, तो वो भी एलिजिबल है। और किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का, तो वो भी एलिजिबल है इन रेलिवेंट फील्ड। ओके, डिजायरेबल बैचलर्स डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सो दैट इज सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट इन NITs। सो नेक्स्ट वन इज जूनियर असिस्टेंट इन NITs। ओके, सो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। एंड 10+2 किया हुआ है किसी ने फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद अ मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन वर्ड, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स। ओके, तो अगर किसी ने 10+2 किया हुआ है और उसके पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड इतने की है और वो प्रोफिशिएंट है कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में, तो वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको जॉब अपडेट पता लग गई होगी। So if you like this video, so please like it and share it more with your friends, and also give us the feedback in the comment section of this video. So thank you very much. Keep watching your video.